things, learning good tips are the important things. That's really good enough. I'm very, content and glad to congratulate all of the students, not only once or twice, but always, I come to support my students morally because they are struggling, they are working hard, and they have a very positive aspect in their mind that whatsoever the interruption or somehow low score of marks may appear to interrupt us, to interrupt our, spirit of the study, but there's a challenge, and challenge should be achieved at the cost of our hard work, commitment, devotion, loyalty to oneself, and that is what the most important components, features, okay, of the student's life, and that will really project enhance you from bottom to top. And as I have experienced a lot of, such pattern of the student's life, okay, the criteria or the routine of the student's life, and those students who have such intact routine in their life to continue their, purpose or the way to study, surely they get something useful one in the end there. So very beneficial, very fruitful, the way you have got in your life. And these are really the good things. As we usually see our students, that they have something in their mind. So your intention, your commitment, okay, your sincerity, or the things you have really availed in your life, they are, I think, a wonderful one. So you have done well. I think almost half of your achievement has been fulfilled. Almost, if you come to be very positive students, to me, half of the achievement you have done, you have already, completed. It is by the way of your study, your taste, okay, or the technique you have been learning from the teachers. So really good coordination I've seen in students they have put with their teachers, and this will certainly lead you in the end with a brilliant success, with a very good people, and you will really shine like the stars in the end. That's where we have got wonderful, achievement in that. So that's what really brilliant students. Okay, right, today we have another topic. A new topic is a very important and crucial topic, and we come up with different tips, structures, and very positive side to encourage our students that please come up to learn. And I have, got today almost the original page of this one, because somehow such structures are, such topics are new and alien to the students, and they feel somehow very, complicated, or feel so it's a big problem to understand. So there's no problem at all. Please, problems are for solutions. For those students who are very, positive, who are willing to learn the things, they can't miss anything out of our teaching. So here come to learn about the fragment, that what is the sentence fragment, Fragment is what? A broken part. It's actually a broken part. Okay, it's actually a detached part of a sentence, and which is incomplete one. तो देखो फ्रेगमेंट क्या होता है बेटा, देखो फ्रेगमेंट एक सेंटेंस का पार्ट होता है. सेंटेंस के मतलब अल्फाज होते हैं, वो मतलब सेंटेंस होता नहीं है. जब वो अलग हो जाता है, हम आते पहले आप थोड़ा प्लीज सुन लें. यानी फ्रेगमेंट जैसा कि आपको पता होगा, आपने मुख्तलिफ बुक्स या सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा कि जो फ्रेगमेंट होता है वो एक मतलब टूटा हुआ अलग सेपरेट जो है वो पार्ट होता है, पीस होता है एक, उसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं. तो सेंटेंस का जो फ्रेगमेंट होता है वो एक्चुअली ऐसा फ्रेगमेंट होता है जो कि सेंटेंस नहीं होता. सबसे पहली बात कि वो ग्रामेटिकली सेंटेंस नहीं होता. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो अपने मीनिंग में, अपने थॉट में कंप्लीट होता है, अपने स्ट्रक्चर में कंप्लीट होता है. उसके अंदर क्लॉज होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फ्रेज होता है. मतलब ऐसी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या ऐसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज, तब हम देखो उसको सेंटेंस बोलते हैं. बेटा सुने देखें, सेंटेंस और फ्रेगमेंट में जो है वो डिफरेंस क्या होता है. हम क्यों फ्रेगमेंट कहते हैं? सेंटेंस के अंदर भी जो जुमला होता है, जो अल्फाज होते हैं, उसको हम सेंटेंस नहीं बोलते, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट बोलते हैं. अब आप देखो एक डिफरेंस है, एक कंट्रास्ट है. उससे सेंटेंस और फ्रेगमेंट का एक डिफरेंस है. सेंटेंस में क्या होना चाहिए, आपको अगर ये डिफरेंस ज़हन में होगा तो आप स्टडी करते वक्त आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको जो एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको जो सेंटेंसेस मिलेंगे,
तो देखो आप नॉलेज के बुनियाद पे यानी फ्रेगमेंट को अंडरलाइन कर सकोगे, फ्रेगमेंट को सॉर्ट आउट कर सकोगे, फ्रेगमेंट को आप चूज कर सकोगे। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी स्ट्रक्चर की, अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है कौन सा फ्रेगमेंट है। तो देखो जो सेंटेंस और फ्रेगमेंट का ही आपस में एक मुकाबला या आपस में हमें ट्रेस करना पड़ेगा। जो हमें सेंटेंस मिलेगा उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा फ्रेगमेंट है कौन सा सेंटेंस है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सेंटेंस क्या होना चाहिए, सेंटेंस मुकम्मल होना चाहिए, स्ट्रक्चर के लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से भी मुकम्मल होना चाहिए और मीनिंग के लिहाज से भी मुकम्मल होना चाहिए। उसको हम सेंटेंस कहते हैं। भाई उस मुकम्मल में क्या होना चाहिए, उस कंप्लीशन में क्या होना चाहिए, उस कंप्लीशन के अंदर देखो सब्जेक्ट वर्ब जैसे अल्फाज होने चाहिए, या फ्रेज या क्लास होता है। देखो हमने क्लास को भी सेंटेंस कहा है, जैसे मतलब फ्रेज भी उसके अंदर आ जाता है सेंटेंस के अंदर। फिर हम अलग करते हैं फ्रेगमेंट की तरह, फ्रेज को भी अलग करते हैं सेंटेंस से। अब आप क्वेश्चन करेंगे मुझसे कि सर फ्रेज और फ्रेगमेंट में क्या फर्क है। बेटा देखो फ्रेज जो होता है, देखो फ्रेज के अंदर हम ये नहीं क्या सब्जेक्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, या फ्रेज के अंदर वर्ब भी कम होता है, लेकिन फ्रेगमेंट के अंदर कभी सब्जेक्ट आता है तो वर्ब नहीं आता, वर्ब आता है तो सब्जेक्ट नहीं आता। मतलब ऐसी जो चीजें यानी कभी कभी मिस होती रहती हैं फ्रेगमेंट के अंदर। तो फ्रेगमेंट और फ्रेज में फर्क होता है, क्योंकि जो फ्रेज होता है उसके अंदर सब्जेक्ट या वर्ब जो वो गायब होता है, जबकि जो फ्रेगमेंट होता है उसके अंदर कभी कोई ना कोई इनमें से एक चीज होती है। या सब्जेक्ट होता है बेटा, अगर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब नहीं होता, या जो वो डिपेंडेंट क्लास हो जाता है। तो इस तरीके से देखो ये चीजें वेरी करती हैं। तो जो मतलब हम स्टडी करेंगे, फ्रेगमेंट को डिस्कवर करेंगे, फ्रेगमेंट को पहचानेंगे, वो पहचानेंगे सेंटेंस के बुनियाद पे, क्योंकि हमें मिला होगा सेंटेंस, उसी में से हमें फ्रेगमेंट को अंडरलाइन करना है। 4-5 जो वो ऑप्शन दिए होंगे उनमें से हमें देखना है कि फ्रेगमेंट क्या है, लेकिन पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस बेटा एक स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट आपका इंपरेटिव भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट आपका एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट आपका असर्टिव भी हो सकता है। मतलब कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, अल्फाजों का ग्रुप जो होता है, ठीक है, उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब होता है, फ्रेज होता है, क्लॉज होता है सेंटेंस के अंदर, इससे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो देखो आपने तो सेंटेंस भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन मैंने आपको सेंटेंस इस तरीके से बता दिया है, ये सेंटेंस होता है। फ्रेगमेंट क्या होता है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी सेंटेंस के ऑपोजिट होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखो फ्रेज के अंदर भी हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और यानी फ्रेगमेंट के अंदर भी देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट डज नॉट हैव कंप्लीट सेंस। ओके, दैट डज नॉट यू नो हैव अ कंप्लीट सेंस। ओके, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं होता, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता फ्रेगमेंट के अंदर, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो मिसिंग होता है किसमें, फ्रेगमेंट के अंदर। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, या वर्ब नहीं होता, या फ्रेज नहीं होता, या प्रेडिकेट नहीं होता, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज जो है वो मतलब मिसिंग होती, देयर इज नेसेसरी कंपोनेंट मिसिंग। ओके, इन द कंप्लीट सेंस नेसेसरी, यू नो देयर इज नेसेसरी समथिंग, जो है वो कंपोनेंट जो होता है वो मिसिंग होता है। तो उससे हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट के अंदर आप एक बात ज़हन में रख लो, यानी फ्रेगमेंट क्या होता है इधर भी डिफाइन किया हुआ है, लेकिन most important component is missing. Okay, that there is necessary component of a complete sentence missing. ठीक है बेटा, ये एक होता है मतलब, यानी फ्रेगमेंट को हम डिफाइन करें तो आप देखें इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, नेसेसरी कंपोनेंट, नेसेसरी component, okay, necessary component is missing। ठीक है, नेसेसरी कंपोनेंट और सेंटेंस इज मिसिंग। किसका बेटा, नेसेसरी कंपोनेंट इज मिसिंग ऑफ व्हाट, ऑफ व्हिच सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का नेसेसरी कंपोनेंट जो वो मिसिंग हो। तो वो नेसेसरी देखो सब्जेक्ट हो सकता है, वो नेसेसरी कंपोनेंट सब्जेक्ट हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है,
या वो फ्रेज भी हो सकता है, वो देखो क्लास भी हो सकता है, या जो है वो आप देखें सेंटेंस की अरेंजमेंट दुरुस्त नहीं होगी। देखो मैं आपको पहले बेस बता रहा हूं बेटा, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो कोई इश्यू नहीं रहेगा आपको। यानी फ्रेगमेंट के अंदर ये लेक होता है, ये गैप होता है, ये चीजें मिस होती हैं, ये सेंटेंस के अंदर अपीयर नहीं होती। कभी देखो पंक्चुएशन के हिसाब से भी गलती हो जाती है बेटा। सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस में देखो क्या होता है, यानी फुल स्टॉप वगैरह हम लगाते हैं। अगर हमारा स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, बयानी जुमला है, असर्टिव है, तो जुमले के आखिर में आप फुल स्टॉप लगाते हो। अगर क्वेश्चन वाला है तो देखो हम इंट्रोगेटिव साइन देते हैं। सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, अगर एक्सक्लेमेटरी होता है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देते हैं। मतलब इस तरीके से हर रिक्वायरमेंट जो हर कंपोनेंट सेंटेंस का कंप्लीट होता है। जबकि फ्रेगमेंट के अंदर जो है वो ऐसी चीजें यानी मतलब मिस होती हैं। तो उसके अंदर जो थॉट होता है, मतलब जब अगर देखो मतलब बुनियादी स्ट्रक्चर का कंपोनेंट अगर मौजूद नहीं होता सेंटेंस के अंदर, तो देखो सेंटेंस का मतलब भी पूरा नहीं होगा, सेंटेंस की थॉट जो होगी वो भी इनकम्प्लीट हो जाएगी। और ऐसी अगर थॉट होती है इनकम्प्लीट, पूरा सेंस नहीं देती, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। अब आप देखो बेटा 3 सेंटेंस ऊपर पड़े हैं, ठीक है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है और ओरिजिनल और अच्छा है, इसीलिए मैंने ये ओरिजिनली जो है वो सर ममताज की कॉपी करते हुए, ठीक है, कभी हम भी कॉपी करते हैं, ये नहीं है आप कॉपी करते, कॉपी करना कभी अच्छी बात है और आप भी करें, इसमें कोई खराब बात नहीं है। देखो अगर कॉपी वो हमें जो वो सही जो वो दुरुस्त लाइन पे अगर लाती है और आपको उसमें जो वो ज्यादा कुछ मिलता है, हासिल होता है, तो कॉपी कर लेनी चाहिए, तो आप भी कॉपी करें, हाँ कोई मसला नहीं है, इसमें हम रोकते नहीं है। अच्छा तो देखें, यानी ये देखो ओरिजिनल जो टेक्स्ट था बेटा वही मैंने पेस्ट किया इधर, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देखें सेंटेंस फ्रेगमेंट्स के अंदर, रीड दीज सेंटेंसेस। आप तीनों सेंटेंस में से मिल आपको पता पड़ेगा कि कौन सा फ्रेगमेंट है और कौन सा सेंटेंस, कौन सा फ्रेगमेंट है और कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। देखो इट लुक्ड लाइक वी वर इन फॉर बेड वेदर, आपको नजर आ रहा है बेटा, विजिबल है राइटिंग या नहीं, विजिबल है, समझ रहे हैं, फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देखो ऐसे मतलब फेडरल में या इनमें जो वो ये चीजें ये टेक्स्ट वगैरह आते हैं, जो हमारे स्टूडेंट की ये चीजें पढ़ी हुई नहीं होती। हमारे स्टूडेंट का क्या पढ़ा हुआ है कि सेंटेंस के आखिर में क्या आता है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन हमारी ग्रामर या स्ट्रक्चर ऐसी पढ़ी हुई थी, क्या आखिर में क्या आता है, सेंटेंस के शुरू में क्या आता है, बीच में क्या आता है, निशानियां ढूंढ रहे हैं, निशानियां ढूंढ रहे हैं, इरेगुलरिटी, जुगाड़बाजी। तो आप देखें अगर इस तरीके से होगा तो बेटा हमारा कॉन्सेप्ट में फिर हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर हम पूछते हैं कि भाई सर ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा नहीं, चीजों को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़े, थारोली पढ़े, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, क्वेश्चन आपका फ्यूचर, फ्यूचर मतलब लाइफ, तो उस पर कंप्रोमाइज ना करें बेटा। तो आप देखें तीनों मैंने दे दिए आपको, तीनों एग्जाम्पल्स, तीनों एग्जाम्पल्स दे दिए, ठीक है। ये तो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, अगर आप बोले तो कोई और कलर आपको, कल जैसे ग्रीन कलर प्रॉब्लम कर रहा था कोई, तो अगर मैं चेंज करके थोड़ा, क्योंकि राइटिंग चेंज होगी तो थोड़ा विजिबल होगा इसीलिए। अच्छा तो देखो इट लुक्ड लाइक वी वर इन फॉर बेड वेदर, ठीक है बेटा, इट लुक्ड लाइक वी वर इन फॉर बेड वेदर। तो अब देखो ये आपका पूरा सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरे, तो हम इसको फ्रेगमेंट नहीं कह रहे, ठीक है। आप देखो सब्जेक्ट भी आपका पढ़ा है, वर्ब भी पढ़ा है आपका, लाइक वी वर इन, देखो मतलब सेंटेंस को जो आगे क्लास की जरूरत पड़े, मतलब लाइक ये जैसा जैसा देखिए हमने कनेक्ट भी किया है, तो सेंटेंस हमारा कनेक्ट भी हो गया, मतलब अरेंजमेंट जो अल्फाजों की होनी चाहिए स्ट्रक्चर के लिहाज से वो पूरी देखो इधर पढ़ी है, लाइक वी वर इन फॉर बेड वेदर, ठीक है। तो आप अब इसको पढ़े, इसका मतलब निकाले, मतलब जोर से पढ़े बेटा। देखो मैं आपको एक टिप बताऊं कि हम फ्रेगमेंट किस तरीके से डिस्कवर कर सकते हैं, सेंटेंस जब भी सेंटेंस पढ़ें तो उसको थोड़ा जोर से पढ़ें, मतलब जहन में जाहिर है, थोड़ा इतना जोर से भी नहीं कि करीब में जो बेटा वो सुन रहा होगा ये क्या कर रहा है, मतलब थोड़ा लाउड रीडिंग करें, उसमें से अंदाजा होगा कि सेंटेंस हमारा पूरा हुआ है या नहीं। तो लाउड रीडिंग से जो है इंसान को पता पड़ता है। अच्छा फिर अगर कहीं कामा आती है तो हमें ये नहीं, वहां कामा पे तो और थोड़ा लाउड करना पड़ेगा, और फुल स्टॉप आता है तो हमें स्लो जो है वो हो जाना है, आवाज कम करना है। तो इन यानी टेक्निक से हमें ये अंदाजा होगा कि ये फ्रेगमेंट है या सेंटेंस है। फिर सबसे ज्यादा देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीट थॉट का होना ये बहुत जरूरी है। जिस स्टूडेंट को सब सेंटेंस बनाना आता है
तो उसके लिए कोई मसला नहीं है फ्रेगमेंट को डिस्कवर करना। ठीक है बेटा, तो ये पूरा लग रहा है, इट लुक लाइक वी वर इन फॉर बैड वेदर, ये लग रहा है। लेकिन आप देखो स्टॉर्मी विंड्स, क्या लिखा हुआ है, स्टॉर्मी विंड्स लिखा हुआ है। अब आप देखो स्टॉर्मी विंड्स, क्या लगता है आपको, मतलब ये लगता है कि हमारा पूरा सेंटेंस है या फ्रेगमेंट है? इधर क्या लिखा हुआ है, स्टॉर्मी विंड्स लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, स्टॉर्मी विंड्स लिखा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये हमारा पूरा सेंटेंस है? सब्जेक्ट है इसके अंदर, वर्ब है इसके अंदर, यानी ये तो रिक्वायरमेंट होती है एक स्टेटमेंट और सेंटेंस के लिए कि ये जब चीजें होंगी तो मतलब देखो हमारा वो फ्रेगमेंट पूरा होगा। तो आप देखें इधर ये सेंटेंस देखो हमारा पूरा नहीं है और इसको आप फ्रेगमेंट बोलेंगे। देखो जो असेंशियल कंपोनेंट्स और नेसेसरी कंपोनेंट्स सेंटेंस के होने चाहिए ना, वो मिस है, वो इधर नहीं नजर आ रहा है, इसीलिए आपका देखो ये फ्रेगमेंट हो गया। स्टॉर्मी विंड्स फ्रेगमेंट हो गया। फ्रेगमेंट वो होता है जो कंप्लीट सेंस ना दे, कंप्लीट थॉट ना दे, ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, ठीक है। स्टॉर्मी विंड्स पता नहीं हम, मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर आप इसको पूरा सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो वी आर फेसिंग स्टॉर्मी विंड्स इन अवर एरिया, ओके, इन अवर सिटी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं वी आर फेसिंग। तो देखो वी भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, अब ये कंप्लीट हुआ। लेकिन ऐसा पड़ा है सब्जेक्ट वर्ब के बगैर, इसको हम कहते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट। ऊपर वाले सेंटेंस सेकंड को कंपेयर करें, ऊपर वाले में सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ पड़ा है इसीलिए कंप्लीट सेंटेंस है, सेकंड में देखो कुछ भी नहीं, फ्रेगमेंट टुकड़ा होता है। देखो ये टुकड़ा है, ऊपर वाला सेंटेंस कंप्लीट नजर आ रहा है, यहां से फिजिकली भी आप मतलब देख सकते हो, यानी ये आपका फ्रेगमेंट हो गया। स्टॉर्म इवेंट्स क्या हुआ, फ्रेगमेंट हो गया। अच्छा, ऐसे आप और भी मतलब यानी लिख सकते हो, वेयर डिड योर फैमिली, देखो वेयर डिड योर फैमिली, बेटा देखो आप इसके साथ में लिख सकते हो वेयर डिड, मतलब मैं दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, देखो ये भी वेयर डिड योर फैमिली, वेयर डिड योर फैमिली। मुझे बताओ ये सेंटेंस है या फ्रेगमेंट है, बताओ, शाबाश, ये मुझे बताओ, वेयर डिड योर फैमिली। बेटा ये आपको राइटिंग प्रॉब्लम कर रही तो मैं ब्लैक से लिखूं वापस, नजर आ रही है, देखो ये रेड राइटिंग, ये कलर आपको नजर आ रहा है सही नंबर से, यहां तो मैं चेंज करके लिखूं, बताना प्लीज, सही है। अच्छा, तो अब देखो बेटा ये जो मैंने लिखा है स्टॉर्मी विंड्स के साथ साथ दूसरा मैंने मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेट किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब सेंटेंस है या फ्रेगमेंट है? वेयर डिड योर फैमिली, ओके बेटा मैं आपको बताऊं, इसको इस तरीके से लिखें, कोई बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस के लिए लिखें एस और सेंटेंस फ्रेगमेंट के लिए लिखें एस एफ, बस। देखो अगर सेंटेंस हो ना तो उसके लिए मतलब बता दें, कमेंट में लिखें एस, अगर सेंटेंस फ्रेगमेंट है तो आप लिखें एस एफ। तो क्या है भाई, ये एस है या एस एफ है? जल्दी, शाबाश, अभी तक सो रहे हो क्या है बेटा, ये बताएं, सेंटेंस है या सेंटेंस फ्रेगमेंट है? एस एफ है, जल्दी बताओ, वेयर डिड योर फैमिली, कमेंट आए, एस या एस एफ? हाँ बेटा अब देखो ये मैंने इसीलिए इंटेंशनली दिया है कि आप देखो समझें। अब देखो ये बेटा एस एफ है, मतलब सेंटेंस फ्रेगमेंट है। भाई आप बोलेंगे क्यों सर, ये मतलब योर फैमिली पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, भाई देखो वेयर डिड योर फैमिली, वर्ब कहाँ है इसमें? अगर वर्ब सेंटेंस नहीं है पूरा, भाई देखो वेयर डिड योर फैमिली, अब क्या मतलब क्या है, मुझे मीनिंग तो बता, आप खुद मीनिंग करें। सेंटेंस क्या होता है, आप बोलते हो सेंटेंस है, सेंटेंस वो जो आपको मीनिंग दे। इस जुमले को ट्रांसलेट करें, वैसे तो ट्रांसलेशन करके, हाँ यही तो ट्रांसलेशन का देखो नुकसान हो रहा है आपको, ट्रांसलेशन देखो सही नहीं हो रही है। अब आप इसका मतलब निकालें, मीनिंग देखें, मीनिंग निकालें बेटा, वेयर डिड योर फैमिली, मतलब मुझे मतलब बताओ क्या भी, कहाँ फैमिली आपकी, कहाँ कहाँ रहती है, कहाँ सेटल है, कहाँ जा रही है, मतलब कोई ऐसा आपको मतलब मीनिंग मिलती है कोई रहने की, जाने की, या कोई ऐसा सेंस निकल जाए? नहीं निकल रहा, वर्ब के बगैर मीनिंग नहीं आएगी। तो इधर देखो वेयर डिड योर फैमिली, अगर आप कहते हो ना सेंटेंस है, तो ये मेरी नजर में क्या बिल्कुल दुरुस्त है, ये एसेफ है बेटा, ये क्या है, एसेफ है। सेंटेंस तब होगा जब वर्ब लगाएंगे, वेयर डिड योर फैमिली लिव, ठीक है,
वेयर डिड योर फैमिली लिव, अब ये आपका सही होगा, मतलब कहाँ रहती थी। तो अब यानी ये आपका सेंटेंस होगा। तो ये भी देखो, ये भी देखो, दोनों हमारे ए सेफ सेंटेंस फ्रेगमेंट है, क्योंकि पूरा सेंस नहीं है। अच्छा, फिर हम आते हैं तीसरे पे, तीसरे पे आते हैं। देखो, दो देयर वाज नो थंडर और लाइटनिंग येट, दो देयर वाज नो थंडर और लाइटनिंग येट, मतलब ना तो गजगोड़ थंडर था और ना तो वो आसमानी बिजली, वहां कुछ भी नहीं थी। लेकिन ये भी आपका फ्रेगमेंट है बेटा, इसको भी क्या कहते हैं, ये भी फ्रेगमेंट है आपका, क्योंकि जो डिपेंडेंट होते हैं, अब सुनो, जो डिपेंडेंट क्लास जो है वो फ्रेगमेंट होते हैं बेटा। जो डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, जो डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट जो हमने पढ़ा है क्लास के अंदर, जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो फ्रेगमेंट होता है। क्या डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, वो फ्रेगमेंट होता है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास क्योंकि वो पूरा सेंस नहीं देते। डिपेंडेंट क्लास जो होता है उसको हम, वो किस में आता है, वो फ्रेगमेंट में आता है। वो बेटा किसमें, वो फ्रेगमेंट में आता है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास फ्रेगमेंट में आता है। अब डिपेंडेंट क्लास के आप कंजंक्शन याद करो, जो भी डिपेंडेंट क्लास के कंजंक्शन होते हैं वो सारे, मिसाल के तौर पर, अब ये देखो, ये भी डिपेंडेंट क्लास हो गया, वेयर, मतलब अगर ये खाली लिखेंगे वेयर डिड योर फैमिली वगैरह, ये क्वेश्चन मतलब हो जाएगा अगर किसी के साथ आप लिखते हो। तो डिपेंडेंट क्लास भी फ्रेगमेंट में आता है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास में क्या इस्तेमाल होता है, कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं। जब आप कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है वो सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस चाहिए उसको, जब तक आप उसके साथ सेकंड सेंटेंस कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तब डिपेंडेंट क्लास खुद तो मीनिंग नहीं देगा, वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो, एक होता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दूसरा होता है डिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है। जैसे उधर लिखा हुआ है ना, जैसे आप देखें बिकॉज, बेटा देखो ये डिपेंडेंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बिकॉज यू आर, ठीक है, बिकॉज यू आर, अब मैंने लिख लिया इधर बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, भले मैं लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, लेकिन अब ये डिपेंडेंट हुआ, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, मुझे बताएं कौन सा मतलब ये नहीं पूरा सेंस नजर आ रहा है, कौन सी पूरी मीनिंग नजर आ रही है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप शागिर्द हो भाई, क्योंकि आप शागिर्द हो, तो क्या फिर आगे कुछ तो और ऐड करें ताकि इसका मतलब पूरा हो जाए। बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, अब ये आपका क्या हुआ, इसको हम कहते हैं एसेफ, क्योंकि ये इसके अंदर ये यानी कंजंक्शन लगा हुआ है, इसीलिए डिपेंडेंट हो जाता है। इसीलिए क्या हो रहा है बेटा, ये डिपेंडेंट हुआ। तो जिस जगह भी सेंटेंस के जिस पार्ट के अंदर डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस लगते हैं, वो सेंटेंस भी फ्रेगमेंट होगा, क्योंकि वो पूरी थॉट और पूरा मतलब नहीं देगा। उसको भी हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस फ्रेगमेंट बोलेंगे, ए सेफ बोलेंगे, क्योंकि वो मुकम्मल नहीं होगा अपनी थॉट, अपनी मीनिंग के अंदर। जैसे इन्होंने दिया है दो, बेटा ये कंजंक्शन है, ये दो कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, डिपेंडेंट कंजंक्शन है, ये पूरा नहीं है, इसीलिए जैसे बिकॉज पूरा नहीं है, ठीक है। बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने दे दिया, बिकॉज यू आर स्टूडेंट यू नीड टू स्टडी। अब देखो पूरा में, अब ये लगाऊंगा ना, तब आप बोलेंगे सर हाँ हाँ अब सही है, यू नीड, सॉरी यू नीड, हाँ, तो देखो अब मैं पूरा कर रहा हूं इसको, यू नीड, यू नीड टू स्टडी बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप शागिर्द है इसीलिए पढ़ना चाहिए। अब ऊपर वाला है ऐसे पे, जब तक हम ये नहीं लगाएंगे इंडिपेंडेंट क्लास, तब तक सेकंड फर्स्ट वाला सेंस नहीं दे रहा। बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, आप शागिर्द हो, मैं आके ऐसे बोलूं आप शागिर्द, आप बोलेंगे सर फिर हम क्या करें, शागिर्द है, आगे बताए ना। तो जब तक मैं दूसरा सेंटेंस ऐड नहीं करूंगा, आप मुझसे सवाल करेंगे सर फिर हमने क्या किया, आप हमें बोलते हो सुबह सुबह आके आप शागिर्द हो, आप ये वो, ठीक है, हमें कुछ और तो बताओ। तो और जब तक आप ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका सेंटेंस क्या होगा बेटा, फ्रेगमेंट होगा। तो अब मैंने बता दिया, अब ये पूरा सेंटेंस हो गया। आपको बोला जाएगा कि डिस्कवर करें या आइडेंटिफाई करें या रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा इसमें सेंटेंस है और कौन सा इसमें फ्रेगमेंट है। तो बेटा जिस जगह डिपेंडेंट कंजंक्शन लगा होता है वो आपका फ्रेगमेंट हो जाता है। और ये तो खुद देखो, यू नीड टू स्टडी, ये फ्रेगमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी पढ़ा है, इसके अंदर वर्ब भी पढ़ा है, ये सब पढ़ा है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो होता है ना बगैर कंजंक्शन वाला, वो फ्रेगमेंट नहीं हो सकता। तो बहरहाल आए इस पे, इसको पूरा करें, ठीक है। हर चीज लिखी हुई है, समझेंगे इंशाल्लाह, बाकायदा मजे से पढ़ेंगे
कोई चीज आपकी मिस नहीं होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ध्यान से प्लीज आप सुने। तो बेटा देखिए ये हुआ। फिर देखो दो देयर वाज नो थंडरिंग और लाइटनिंग येट, मतलब अलबत्ता, अलबत्ता वहां ना तो मतलब कोई गजगोड़ था और ना आसमानी बिजली, अलबत्ता वहां कुछ नहीं था। लेकिन अलबत्ता नहीं था तो फिर क्या था उधर? देखो ये भी इनकम्प्लीट है ना, ये भी इनकम्प्लीट हो रहा है। जब तक आप इसके साथ ऐड नहीं करेंगे तो ये भी फ्रेगमेंट हो जाएगा। अल्दो देयर वाज नो थंडर और लाइटनिंग येट, ठीक है, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। तो क्या था? इट वाज रेनिंग, सिर्फ बारिश हो रही थी। इट वाज रेनिंग, कोई भी आप ऐड करें, ओके, इट वाज रेनिंग या इट वाज या देयर वाज स्टॉर्मी विंड्स, मतलब आपको कोई ना कोई कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा तब ये पूरा होगा। तो देखो बेटा ये क्या कहता है, द फर्स्ट सेंटेंस कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। पहला जुमला जो हमने लिखा है वो सेंटेंस हमारा क्या है, यानी उस सेंटेंस के अंदर देखो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब वगैरह और पूरी मीनिंग और थॉट दे, वो आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। देखो कंप्लीट सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, जो ग्रामेटिकली मतलब कंपोनेंट्स चाहिए वो सारे पूरे ऊपर वाले सेंटेंस में, वो सेंटेंस हुआ। क्योंकि सब्जेक्ट भी पढ़ा है, वर्ब भी पढ़ा है, फ्रेज भी पढ़ा है और पूरा देखो उसमें क्लास पूरा पढ़ा है, ठीक है, सेंटेंस पूरा है, इसीलिए इंडिपेंडेंट हुआ। हाउएवर द सेकंड एंड थर्ड सेंटेंसेस आर नॉट रियल सेंटेंसेस। बेटा देखो सेकंड एंड थर्ड तो मैंने भी बता दिया, इन्होंने कौन सा कमाल किया, मैंने पहले आपको बता दिया है। हाउएवर सेकंड और थर्ड, ओके, ये रियल सेंटेंस नहीं है। जो रियल नहीं होते हैं ना वो फ्रेगमेंट होते हैं। आप बोलेंगे सर रियल कौन सा होता है? रियल वो होता है जिसमें मतलब के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से, थॉट के लिहाज से सब कुछ पूरा हो, तो उसको हम कहते हैं रियल। स्ट्रक्चर में पूरा सेंटेंस हो उसको हम रियल कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ये सारे कंपोनेंट्स हो उसको हम क्या कहते हैं? रियल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ, वन इज अ मियर फ्रेज एंड द अदर अ डिपेंडेंट क्लॉज। खाली फ्रेज हुआ। अब फ्रेज भी कंप्लीट सेंटेंस कहां होता है? बेटा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब होता है, फ्रेज के अंदर नहीं होता, तो फ्रेज भी फ्रेगमेंट हो सकती है, फ्रेज भी फ्रेगमेंट हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वक्त फ्रेज जो है वो फ्रेगमेंट हो। सुने, जरूरी नहीं है कि हर वक्त फ्रेज जो फ्रेगमेंट हो, क्योंकि फ्रेगमेंट के अंदर कभी एक कोई वर्ड आ जाता है, कौन सा? सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब नहीं आता, वर्ब आ जाता है, सब्जेक्ट नहीं आता, या इन्फिनेटिव आ जाता है, कोई मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि फ्रेज में तो होती नहीं है बिल्कुल। तो कभी कभी देखो ये वेरिएशन होती है, ये डिफरेंस भी मैंने बता दिया आपको कि फ्रेगमेंट और फ्रेज में क्या फर्क है। आपको समझ में आया? समझ में आया आपको? अब आप चाय पी रहे हो तो कहां से आपको समझ में आएगी? प्लीज आप कब रखे अपना, सुने मुझे, ये वापस बात सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए ये नहीं, ये इस लिहाज से कि जो फ्रेगमेंट होता है उसमें सब्जेक्ट या वर्ब कभी आ सकता है, कभी उनमें से एक आएगा, दोनों साथ नहीं आएंगे। दोनों साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। एक आ सकता है, कोई एक आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बोलूं कि आई टीचिंग इंग्लिश, आई टीचिंग इंग्लिश, आई टीचिंग इंग्लिश, बताओ सेंटेंस है फ्रेगमेंट है? आई टीचिंग इंग्लिश सेंटेंस है फ्रेगमेंट है? बताओ, एसेफ है या ऐसे? शाबाश, बताओ, कप नीचे रखो, बताओ ये एसेफ है या ऐसे? आई टीचिंग इंग्लिश, बेटा ये एसेफ है, क्योंकि एस होगा तो कैसे होगा? सेंटेंस होगा तो होगा आई एम टीचिंग। इसमें देखो एम है नहीं, बी का वर्ब भी नहीं है और मैंने प्रोग्रेसिव फॉर्म बना दिया, तो ये होता है। तो देखो मतलब फ्रेगमेंट के अंदर कभी वर्ब नहीं होता। अच्छा कभी ऐसा होता है एम टीचिंग इंग्लिश, एम टीचिंग इंग्लिश, फिर भी फ्रेगमेंट, एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, फ्रेज तो नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्रेज में वर्ब नहीं आता ना। तो इधर देखो एम टीचिंग इंग्लिश पूरा बता दिया मैंने। इधर कौन सी चीज गायब हो रही है? मिसिंग कौन सी है? सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए देखो ये क्या हुआ? फ्रेगमेंट हुआ। सवाल है चाहिए? सुने, चाहे मेरा सवाल लूंगा। अच्छा, तो आप देखें बेटा इन चीजों को इस तरीके से नोट करें। वन इज मियर फ्रेज एंड द अदर डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये डिपेंडेंट हुआ क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस चाहिए तब ये पूरा होगा, ठीक है। सच फ्रेजेस एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन नॉट क्वालिफाई एज सेंटेंस
since they cannot stand alone and do not express a complete idea. बेटा देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, वन इज अ मियर फ्रेज एंड द अदर, ये भी आपका देखो फ्रेज हुआ और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। तो फ्रेज और डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो फ्रेगमेंट्स में आते हैं। ठीक, तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्लॉज सच फ्रेजेस एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन नॉट क्वालिफाई एज सेंटेंसेस। वो खुद जुमले नहीं होते, पूरी थॉट इनमें पूरी मुकम्मल नहीं होती, हम मीनिंग करते तब हमें जोर से पढ़ते हमें पता पड़ता है कि पूरा नहीं है। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। कंप्लीट आइडिया की बात, वो जिसमें कंप्लीट आइडिया ना हो वो फ्रेगमेंट है, जिसमें हो वो सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा, दे आर अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, देखो फ्रेगमेंट मतलब क्या, पार्ट होता है, टूटा हुआ ऐसा होता है, टूटा हुआ अलग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कोई पेन होती है, कोई मार्कर है ना, आप देखो ये मतलब आप सामने देखो पेन है, अब हमने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ये फ्रेगमेंट हुआ। इसको तो रखे ना, आप बोलेंगे सर दो पढ़िए पता नहीं पड़ रहा हमें, इधर भी आप क्वेश्चन करेंगे, बेटा देखो ये पढ़िए आप, पेन है ना, ये पेन आप देखो पूरा सेंटेंस, इसको मैंने अलग कर दिया, ये फ्रेगमेंट, जो पार्ट ये फ्रेगमेंट, क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन है, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट वाली बात है, क्योंकि पूरा लिख भी सकती है, इसका कौन सा काम है, कोई भी नहीं, ये हमें कोई फंक्शन नहीं दे रहा, तो ये फ्रेगमेंट हुआ और ये सेंटेंस हुआ, मतलब अलग जो टुकड़ा होता है उसको हम कहते हैं क्या, फ्रेगमेंट। तो सेंटेंस में भी इसी तरीके से होता है, सेंटेंस का पार्ट, जैसे पेन का ये केप जो वो पार्ट वन, इसी तरीके से, तो इधर लिखा हुआ है cannot stand alone and not express a complete, they are a part of sentence and known as sentence fragments, उसको sentence। और अब डेफिनेशन आ गई, देखो a sentence fragment is a group of words। बेटा ये भी ग्रुप ऑफ अल्फाज तो होंगे इसमें, इसमें भी अल्फाज होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, ऐसा नहीं एक होगा। That does not express a complete idea and cannot make sense on its own, खुद सेंस ना दे वो, जब तक उसके साथ कोई दूसरे अल्फाज एड हम करें, कनेक्ट करें, वो खुद अपनी मीनिंग ना दे, तो उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट। ठीक है, ऊपर वाले दोनों देखो, ये स्ट्रॉम इवेंट्स देखें, दो देयर वाज नो थंडरिंग और लाइटनिंग को देखें, खुद सेंस नहीं दे रहे, जुमले सेंटेंस के पार्ट तो हैं। इधर भी देखें, इधर मैंने भी दिया है ना कुछ, मेरी मेहनत को भी देखें ना, देखो बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, देखो ये तब तक सेंस नहीं देता जब तक इसको हम किसी के साथ कनेक्ट या एड नहीं करते। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, तो फ्रेगमेंट में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। इट इज यूजुअली एन इनकम्प्लीट आइडिया। ठीक है, देखो फीचर्स देखो, एक तो बात भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, राइट, डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया, दो कैन नॉट मेक सेंस ऑन ओन, एन इनकम्प्लीट आइडिया होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा, समटाइम्स कंसिस्टिंग ओनली, ओके, ओनली ऑफ अ डिपेंडेंट क्लॉज, कभी कभी देखो डिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है, कभी फ्रेज आ जाता है। टू कंप्लीट इट, क्या उसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो इस फ्रेगमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक गैप और मिसिंग लेक नजर आता है, जब तक वो लेक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक वो फ्रेगमेंट ही रहेगा, लेक आपने पूरा किया तो फिर वो सेंटेंस हो जाएगा। इधर मैंने लिखा फ्रेगमेंट, इसको चाहिए और स्ट्रक्चर, तो मैंने यू नीड टू स्टडी लिखा, तो ये देखो पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो ये पूरा हुआ। अदरवाइज ऐसा सेंटेंस देखकर आपसे पूछेंगे कि इसमें आप फ्रेगमेंट को अलग करें और सेंटेंस अपने सेंटेंस को अलग करें, बेटा सब्जेक्ट वर्ब होगा तो वो सेंटेंस, अगर उसमें नहीं होगा तो फ्रेगमेंट। आप एग्जांपल्स देखें, सिचुएशन देखें, डेफिनेशन देखें, अंडरलाइन देखें, और अभी एग्जांपल्स आ रहे हैं नीचे वो देखना फिर। ठीक है ना, जिस तरीके से चाय को देख रहे हैं इस तरीके से इसको देखें, तो फिर देखना आपको कितना आराम से आप समझ सकते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी एडेड, मतलब हमें कुछ नहीं। अब देखो इसमें उन्होंने टाइप्स दिए हमें, बेटा सब्जेक्ट गायब होता है, कभी वर्ब गायब होता है, कभी इन्फिनिटिव टू गायब होता है, कभी कोई कंजंक्शन गायब होता है। मतलब फ्रेगमेंट तब बनता है जब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है सेंटेंस में से मौजूद नहीं होता, मिस होता है, तब वो फ्रेगमेंट बन जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, ठीक है, आई टीचिंग कौन सा गायब, एम गायब हो गया, एम टीचिंग क्या गायब हो गया, आई गायब हो गया, सब्जेक्ट गायब हो गया। ऐसे कोई ना कोई चीज गायब होती है तब वो जुमला ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेगमेंट बन जाता है। तो बेटा देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंस फ्रेगमेंट, एरर्स इन राइटिंग, देखो एरर्स आती हैं। केयरलेस फ्रेगमेंट एरर, मतलब जल्दी जल्दी हम जो सेंटेंस तो लिख लेते हैं, केयर नहीं करते या देखते नहीं, हमें लगता है कि ये पूरा जुमला है।
देखो बड़े सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस आते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर टेस्ट के अंदर हमें जो है वो कुछ बड़े बड़े लॉन्ग सेंटेंस दें हमें, अगर थोड़ी टेस्ट मुश्किल देते हैं तो कुछ बोलते हैं कि सर देखो इतनी मुश्किल टेस्ट। ठीक है, तो आप देखें, दिस अकर्स व्हेन द राइटर इज केयरलेस और इन टू मच ऑफ हरी टू राइट अ कंप्लीट सेंटेंस। देखो बेटा ये चीज कब होती है, ये तब होती है कि हम जल्दी जल्दी लिखते हैं या पढ़ लेते हैं सेंटेंस, हमें पता नहीं पड़ता। अब देखो इधर इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, कितना जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, आप देखें, आई नीड टू बाय अ न्यू कार, आई नीड टू बाय अ न्यू कार, एनी मॉडल। अब देखो ये फ्रेगमेंट हुआ, कौन सा फ्रेगमेंट हुआ है बेटा, इधर कौन सा फ्रेगमेंट हो गया सेंटेंस। ठीक है, आई नीड टू बाय अ न्यू कार, एनी मॉडल। क्या इधर देखो ये एनी मॉडल वाला ये आपका फ्रेगमेंट। अब बोलेंगे सर क्यों फ्रेगमेंट हुआ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये फ्रेगमेंट हो रहा है। बेटा ये इसीलिए फ्रेगमेंट हो रहा है क्योंकि इसको हमें कनेक्ट करके लिखना है, लेकिन इधर देखो फुल स्टॉप पड़ा है, यानी ये कैसे लिखा हुआ, फुल स्टॉप देकर फिर जो है उसको लिखा गया, फुल स्टॉप देकर फिर इसको लिखा गया, लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, तो जब ये सेंटेंस से अलग हो गया तो फ्रेगमेंट हो गया, एक टुकड़ा हो गया जो कि खुद अपनी अलग। एनी मॉडल, मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूँ एनी मॉडल, आके मैं आपको बोल रहा हूँ एनी मॉडल, तो आप देखें इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन कई स्टूडेंट्स उधर जो वो लिख रहे होंगे, बता रहे होंगे सर 2021 क्या ऐसा लिख रहे होंगे, तो भाई वो आप अपने तौर पर, लेकिन एनी मॉडल देखो अलग है, ये बेटा फ्रेगमेंट है। अब करेक्ट सेंटेंस देखो, इसी को करेक्ट किया गया है, आई नीड टू बाय अ न्यू कार, एनी मॉडल वुड सूट मी, एनी मॉडल वुड सूट मी। बेटा देखो एनी मॉडल, ये सब्जेक्ट तो हमने इधर लिखा था पहले, लेकिन वर्ब वगैरह नहीं था, लेकिन अब आप देखो हमने अलग करके लिखा है, यानी सब्जेक्ट भी लिखा है इसको और वुड सूट मी, आप देखो वर्ब भी इसको हमने लिखा है, तो मैंने इसको अलग करके लिखा सब्जेक्ट वर्ब। अब देखो ये हमारा पूरा हो गया। अब ये आपका क्या हुआ, एस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एस एफ हो गया। क्या, एस एफ, क्योंकि ये एस एफ इसीलिए हुआ है बेटा क्योंकि ये पूरा सेंस या पूरी थॉट नहीं दे रहा, इसीलिए आपका एस एफ हो गया। तो आप देखें सेंटेंस फ्रेगमेंट में हम कल भी डिस्कस करेंगे, कोई मतलब इसकी काफी स्ट्रक्चर्स, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी बेटा वापस आए कि जब नेसेसरी कंपोनेंट सेंटेंस के अंदर मिसिंग हो ना हो तो उसको फ्रेगमेंट कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, वो सब्जेक्ट वर्ब फ्रेज या कोई मतलब सेंटेंस की जो एक अरेंजमेंट होती है स्टेटमेंट वाली, जिसमें जो जरूरी अल्फाज होते हैं उनका ना होना भी क्या होता है, वो फ्रेगमेंट कहलाता है। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद देखो एग्जाम्पल ऊपर वाला सेंटेंस हुआ, दोनों आपके देखें फ्रेगमेंट्स हो गए, इसीलिए दोनों फ्रेगमेंट्स हुए क्योंकि इनमें थॉट या मीनिंग या सेंटेंस की जो मतलब एक आइडिया होनी चाहिए ना, वो पूरी नहीं है बेटा, वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसीलिए वो फ्रेगमेंट हो रहा है। तीनों की कंपैरिजन आप खुद लिख सकते हैं, फिर तीनों की एक्सप्लेनेशन है। देखो तीनों की एक्सप्लेनेशन है कि सेंटेंस आपका जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होता है, खुद सेंटेंस इंडिपेंडेंट नहीं होगा बेटा, तब तक वो सेंटेंस नहीं होगा, वो फ्रेगमेंट हो जाएगा। उसके लिए होना, जैसे मैंने दिया वेयर डिड योर फैमिली, देखो इसमें वर्ब गायब है, और भी मैंने एग्जांपल दिए फ्रेगमेंट। इधर देखो मैंने डिपेंडेंट कंजंक्शन लिखा, इंडिपेंडेंट नहीं दिया, तो आप देखो ये भी आपका ये नहीं फ्रेगमेंट हो जाता है। तो हम प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन पहले बेस तो बनाएं, एक बेस ऐसा मजबूत बनाएं कि आपका टीचर सेंटेंस लिखे और आप फौरन ही बता दो उससे पहले कि सर ये आप फ्रेगमेंट लिख रहे हो या सेंटेंस लिख रहे हो। मेरा मकसद ये आपको उस तरफ लेके जाना कि आप खुद जो है वो क्लिक करके बात जो है वो बता दें। तो ये सारी सिचुएशन लिखी हुई है, इनकी देखो डेफिनेशन है कि फ्रेगमेंट में क्या होता है, पूरा मतलब नहीं होता। एक बात ध्यान में रखें, ये क्लूज है, ये टिप्स हैं, मीनिंग पूरी नहीं होगी। ठीक है, इनकम्प्लीट आइडिया होगा। डिपेंडेंट क्लास भी देखो इसमें फ्रेगमेंट में आ जाता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। फिर आप देखो हमने सिर्फ एक अभी टाइप जो डिस्कस किया है, और वो टाइप ये कि हम केयरलेसली उसको सेंटेंस मान लेते हैं। बेटा वो सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि वो सेंटेंस आपका तब होगा जब उसके अंदर पूरा सब्जेक्ट और वर्ब होगा। हम देखो फुल स्टॉप देकर आधा लिख लिया है, आई नीड टू बाय अ न्यू कार, फुल स्टॉप दिया हुआ है, अब ये आपका सेंटेंस फ्रेगमेंट है, क्योंकि आपने जो अलग लिखा है ना उसका ना वर्ब है ना कोई कुछ और नहीं है चीज, इसीलिए वो सेंटेंस पूरा आपका नहीं होगा। तो ये आज इतना काफी है, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। आपके अगर क्वेश्चन हो तो आप भले मुझे कर ले, उधर लिख लें या मुझे व्हाट्सएप कर लेना, ताकि उन क्वेश्चंस को देखकर मैं मजीद
मतलब अच्छे नमूने से एक्सप्लेन करूंगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसी बात हमने कोई पढ़ी नहीं है मुश्किल जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो। ये से